وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ منتخب وزیر اعظم ہے، کس کی جرت کہ ان سے استعفیٰ مانگے۔ ڈی جی ISI ان سے استعفیٰ مانگتے تو وہ ڈی جی سے استعفیٰ مانگ لیتے، آرمی چیف ان سے پوچھے بغیر کارگل پر حملہ کرتے تو وہ انہیں فارغ کر دیتے۔ ایک انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اقتدار چھوڑنے کو ترجیح دیں گے، NRO نہیں دیں گے۔ نواز شریف ملک سے باہر بیٹھ کر فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، پاک فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ ہمیں گرفتار کیا گیا تو نواز شریف لندن سے قیادت کریں گے، نون لیگ کو جھکانا خام خیالی ہوگی، اگر کسی نے ان کو گرفتار کرنا ہے تو کر لے، وہ ضمانت قبل از گرفتاری نہیں کرائیں گی۔ اس حکومت کی بنیادی اتنی کمزور ہے کہ اس حکومت کو ایک جھٹکا لگا تو یہ حکومت ایک جھٹکے اگر سہ نہیں سکے گی، جس کی بنیادی سازشوں پہ رکھی گئی ہو، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز، اور آپس میں 2-3 لوگوں نے میرج آف کنوینئنس کیا ہو، تو اس حکومت کو ہلانا گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اپنی سازشوں کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے وقت سے بہت پہلے گر جائے گی۔ ابھی تو میرے پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرے پہ دہشت گردی کا مقدمہ ایک بنایا ہوا ہے، FIR کٹی ہوئی ہے، جس پہ پتھر بھی میں نے ہی کھائے تھے، شیشے بھی میرے ہی ٹوٹے تھے، اٹیک بھی میری گاڑی پہ ہوا تھا جس کو کہا گیا کہ لیزر گن سے اٹیک ہوا تھا۔ تو دہشت گردی کا مقدمہ میں نے تو اس میں بھی بیل بیفور اریسٹ نہیں کرائی۔ آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے، سب کے سامنے کرے، میں بیل بیفور اریسٹ نہیں کراؤں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ نواز شریف اور الطاف حسین کے خطاب میں اب کوئی فرق نہیں رہا، فرق صرف ایک نعرے کا رہ گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ ملک کے خلاف وہ تقریریں کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک سے اربوں روپے کے اثاثے بنائے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ سوالوں کے جواب دے دیں، اثاثے کیسے بنائے اور پیسے ملک سے باہر کیسے لے گئے۔ تقاریر وہ لوگ کر رہے ہیں یا وہ شخص کر رہا ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ دھوکہ دے کے عدالتوں کو، پورے سسٹم کو، وہ یہاں سے چلا گیا ہے اور ابھی انگریزوں کے وطن میں بیٹھا ہے۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ چلتی گاڑی میں سے کسی کو گالی دے کے بھاگ جائیں، کیونکہ یہ جو تقاریر ہو رہی ہیں یہ بنیادی طور پہ اس ملک سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ صرف 2 سوالوں کے جواب اس قوم کو دے دیں، عدالتوں کو دے دیں کہ آپ یہ پیسے اثاثے آپ نے کیسے بنائے، یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور کتنی پراپرٹیز ہیں یہ آپ نے کیسے بنائے اور آپ پیسے کیسے لے کے گئے۔ بس اس قوم کا صرف یہی 2 سوال ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ کارکنان ان کی تحریک کے لیے باہر نکلیں، وہ فوج کے حلف کی بات کرتے ہیں، اپنا حلف بھی یاد کریں۔ نواز شریف کو باہر بھیجنا غلطی تھی، ان لوگوں کو غلطی کا اندازہ ہو گیا ہوگا جنہوں نے نواز شریف کو باہر بھیجوایا۔ یہ ہے کہ اداروں کے اندر تفریق پیدا کی جائے۔ پہلے وہ چاہ رہے تھے حکومت میں اور فوج کے اندر تقسیم ہو، عدلیہ کے اندر تقسیم ہو، جب ادھر سے ناکام ہوئے ہیں اب اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ وہ بلیک میل کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ادارے یا تو ان سے ڈر کے یا ان سے اس بات کے اوپر آ کر کے سمجھوتا کریں، ان کے کرمنل کیسز، ان کے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی نہ ان کی تحریک ہے، نہ ان کی سیاست ہے، نہ ہی ان کا کوئی نظریہ ہے۔ آپ کو صرف یہ پرابلم ہے کہ آج جنرل باجوہ، پاکستان کی فوج، پاکستان کی عدلیہ آپ کی کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کر رہی۔ کوئی اور گلہ آپ کا نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ جس طریقے سے لندن میں ہیں جلد آپ پاکستان آپ کو واپس لایا جائے گا اور آپ عدالت میں یہ تقریر کریے گا، اور جو اس وقت مجھے امید ہے کہ جنہوں نے باہر بھیجا ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ غلطی تھی ان کو باہر بھیجنا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا مقابلہ سلیکٹڈ عمران خان سے نہیں ہے، مہنگائی کے ذمہ دار عمران خان کو لانے والے ہیں، جواب بھی لانے والوں کو دینا ہوگا۔
सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म से पूछा जाए कि चीनी 50 से 100 रुपए किलो कैसे हो गई। नवाज शरीफ ने कहा कि उनके दौर में बिजली आ गई थी, दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, मईशत आसमान पर चली गई थी, गैस के मंसूबे लग रहे थे, आज डॉलर महंगा हो गया, रुपया मिट्टी में मिल गया है। नवाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन सैबोटाज करना छोटा जुर्म नहीं, वो अवाम का मैंडेट चोरी करने वालों को सलाम नहीं करते। शहबाज शरीफ को सुनना तक गवारा नहीं किया गया, सीधा जेल पहुंचा दिया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि नैब बताए अलीमा खान को अब तक नोटिस क्यों नहीं भेजा गया। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि इमरान खान को जवाब देना होगा कि बनी गाला की रियासत के लिए पैसा कहां से आया। नवाज शरीफ ने कहा कि वो इस मिट्टी का नहीं बना हुआ जो दोहरे मयार पर खामोश रहे, कोई उन्हें चुप करवाने की कोशिश भी ना करे। नवाज शरीफ का कहना था कि उनकी पार्टी अफवाज पाकिस्तान की खिदमत के जज्बे से सरशार है। सरहदों पर 24 घंटे ड्यूटी देने वालों के लिए नवाज शरीफ की जान भी हाजिर है। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है, अल्लाह दोबारा मौका देगा तो दोबारा खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ ने आज मुसलसल दूसरे दिन मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर से इजलास से खिताब किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 और पेमरा एक्ट 2007 के सेक्शन 27 के तहत इश्तहारी और मफरूर अफराद के इंटरव्यूज और खिताब नशर नहीं किए जा सकते। इस पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए नवाज शरीफ की तकरीर जियो न्यूज़ पर नहीं दिखाई जा रही। पेमरा ने एलामिया में मजीद कहा कि इश्तिहारी और मफरूर मुजरिमान की तकरीर या इंटरव्यूज़ पर तबसरा भी नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने पेमरा के सर्कुलर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पेमरा के सर्कुलर के बाद मफरूर इमरान साहब और काबीना की कवरेज चैनल्स पर बंद है। जिसने आवाम का वोट चोरी किया उसे अब चैनल्स पर नहीं दिखाया जा सकता। पेमरा ने वोट, आटा, चीनी, दवाई चोरों को चैनल्स पर दिखाया तो अदालत जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पेमरा का हुक्म है कि फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल से मफरूर इमरान साहब को टीवी पर ना दिखाया जाए। पेमरा सर्कुलर के मुताबिक काबीना की कार्रवाई अब टीवी पर नहीं चल सकती। अफगानिस्तान के कौमी मसालती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है कि अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, अलकायदा और दाइश जैसी तंजीमों के लिए कोई जगह नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ अमन मुआहिदा करें और दूसरी तरफ ऐसी दहशतगर्द तंजीमें मुख्तलिफ नामों से सरगर्म अमल हो, ये ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन होगा। प्रोग्राम जरगा हफ्ते की रात 10:05 पर नशर किया जाएगा। I would say that based on one principle, that first, Afghanistan, peaceful Afghanistan, shouldn't be room for any terrorist group under any name. You call it TTP, Al-Ahrar, whatever, ISIS, IMU, Al-Qaeda. This will be a disastrous situation. That we have a peace deal, but at the same time, these terrorist groups and their different names, they continue to create insecurity for us or for the region. As a matter of principle, I cannot see that I can agree for a single second with the presence of any terrorist group under any name. It's not in our interest. I'm not going towards the allegation, not allegations. I will say that there have been certain challenges in our relations throughout. What is the way forward? To get stuck in the past or to get together and work out something which is in everybody's interest. दीगर खबरें शामिल करेंगे। क्रिकेट के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने के लिए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का मंसूबा हमेशा से था, अलबत्ता लाहौर कलंदर्स ने पहल की है। बल्लेबाज ने स्ट्रोक कैसा खेला, कुव्वत कितनी थी, गेंद की रफ्तार क्या थी, ये सब जाना जा सकता है जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से। और इसी जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए MOU पर दस्तखत किए हैं PSL की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। पाकिस्तान आपको पता है कि सॉफ्टवेयर का दुनिया का तीसरा और चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है। सो उन बच्चों के साथ मिलके जिन्होंने ये सारा पहले इतना ज़बरदस्त जो इक्विपमेंट्स बनाए हैं, टेक्नोलॉजी बनाई है, लाहौर कलंदर हैज़ बिन ग्रेशियस इनफ, इन्होंने उसको जो है वो एक मेंटोरशिप देने का फ़ैसला किया है।
लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि क्रिकेट में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने से नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें निखारने में मदद मिलेगी। कोई भी मुआशरा जो है वो स्पोर्ट्स के बगैर तो तरक्की करता नहीं है, और कोई भी मुल्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं चलता। तो मेरा ख्याल है कि फवाद साहब का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, और जब हमें इस बारे में पता लगा, उनसे हमारी बात हुई, तो फिर एक बाकायदा हमने उसको एक सिस्टम की शक्ल दी। हम अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में हम 20 पिचेस बनाते हैं, और उसमें हर 10 तरह की पिचेस जो हैं वो होंगी। कोई सिंध की मिट्टी होगी, कोई बलूचिस्तान की होगी, कोई कश्मीर की होगी, कोई इधर अफाटा से आएगी, ताकि डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट पिचेस बिहेव करेंगी। लाहौर कलंदर्स और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तय पाने वाले MOU के तहत क्रिकेट में स्मार्ट बॉल, स्मार्ट बैट, स्मार्ट जूते और एडवांस डेटा एनालिसिस समेत कई दीगर शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद खाकान के साथ अरफा फिरोजकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। स्कूल में दाखिल होते वक्त तारुफ क्यों पूछा? बूरेवाला में असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब ने निजी स्कूल में दाखिले के वक्त तारुफ मांगने पर सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। तमाम इलाका मैजिस्ट्रेट ने सिक्योरिटी गार्ड की जमानत मंजूर कर ली। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने बूरेवाला वाक़े पर कहा है कि ये शर्मनाक बात है कि जिस पर जुल्म हुआ उसी पर बूरेवाला के असिस्टेंट कमिश्नर ने पर्चा कटवा दिया। एक बयान में शहबाज गिल ने कहा कि DC साहब ने इंक्वायरी भी इसी के साथियों को ही दे दी। आपने सबको पागल समझा हुआ है क्या? शहबाज गिल ने कहा कि ये इमरान खान की हुकूमत है, ऐसा जुल्म नहीं चलेगा। AC और SHO को फौरन मुअत्तल करके कार्रवाई करें। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप में शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। कराची में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी खालिद महमूद, मोहम्मद अरशद ऐवान, लुबना परवीन, शकील यामीन कांगा, राना यूसुफ, दारा जफर समेत दीगर ने शिरकत की। एहतजाज में सदर सिंध विमेंस वेलफेयर एसोसिएशन अफशा हुसैन ने अरकान समेत शिरकत की। उनका कहना था कि सिंध विमेंस वेलफेयर एसोसिएशन के तहत मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए रैली निकाली जाएगी। रावलपिंडी में जंग ऑफिस के बाहर हुए एहतजाज में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, सीनियर सहाफ़ी राना गुलाम कादिर, आसिफ अली भट्टी समेत दीगर शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान आज़ाद सहाफ़त के अलंबरदार हैं, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सिविल सोसाइटी के रहनुमा अब्दुल्ला मलिक, सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजुम, उवैस करनी, फारूक ऐवान, मोहम्मद जाहिद, अजीज शेख, अफजल अब्बास और आयशा इकराम ने शिरकत की। पेशावर में जंग जियो दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स शरीक हुए। कोयटा में एहतजाजी मुजाहरा जंग बिल्डिंग के बाहर किया गया। मुल्तान में जंग जियो दफ्तर के बाहर एहतजाज में नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार बशीर अहमद अंसारी, साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल हाफिज नवीद अख्तर और सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। बहावलपुर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, जिसमें साबिक मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अकील नजम और नून लीग के कारकुनान भी शरीक हुए। नवाब शाह में भी सिविल सोसाइटी ने मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए एहतजाज किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोजगार स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत आसान शराइत और कम शरह सूद पर 30 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि PTI का विजन नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे हासिल किए जा सकेंगे। सिंध में पहली बार पूरे मौसम सरमा में CNG स्टेशन को गैस फराहम न करने का फैसला किया गया है। सुई सदरन हुकाम के मुताबिक गैस की किल्लत के सबब 15 अक्टूबर से बेशतर CNG स्टेशन बंद रखने का मंसूबा बनाया गया है। सिर्फ LNG पर चलने वाले CNG स्टेशन खुलेंगे। मंसूबे के मुताबिक मकामी गैस से चलने वाले CNG स्टेशन 15 फरवरी या 15 मार्च से दोबारा खुल जाएंगे।